Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the percentage problem which may be asked in GATE 2026 and these are the PYQ. Okay, so this is the previous year question of GATE examinations. So the first question says that in a party 60% of the invited guests are male and 40% are female. Okay, and if 80% of the invited guests attended the party and if all the invited female guests are attended, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, if all female guests are attended. Okay, so what would be the ratio of male to female among the attendees of the party? So कौन कौन अटेंड कर रहा है पार्टी को, उसका रेशियो पूछ रहा है. ठीक है, so हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम 100 पीपल्स. ओके, 100 पीपल्स आर इन्वाइटेड. ओके, 60 are man and 40 women. Okay, 40 women invited, and during the party क्या करा, 80% of the invited guests attended the party. 80% attended the party, so 80 people attended the party. Okay, एंड उसमें से सारी फीमेल, जितने भी फीमेल है वो सारे वो पार्टी को अटेंड करते हैं. सो देखो कितने फीमेल थे टोटल हमारे पास, 40 वोमेन. ओके, 40 वोमेन एंड 60 मैन. सो 40 वोमेन, तो 40 की 40 वोमेन तो अटेंड कर रहे हैं, तो बचा कितना हमारे पास, out of 80 40 men are attended the party. Okay, so out of 80 40 men are attended, sorry, men 40 men are attended, so the ratio becomes man and woman equal to 1:1. Okay, this is the first method, and if you solve by second method, then let x number of peoples are invited. Okay, and out of x there say that 60% of the invited guests are male, so 0.6 into x, and 40% of the female, so 0.4 into x. ये हमारी फीमेल है. ओके, एंड दिस आर दी मेल. एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, 80 0.8 x, ये क्या है हमारा, अटेंड द पार्टी, attend the party. Okay, and out of this 40 men 40 women, all women are attending the party, so 0.4x is the woman and 0.4 is the man. Okay, so this tree is like this. Okay, 0.4. सो 60 में से हम लोग के मैन कितने अटेंड कर रहे हैं, 40, और वोमेन तो पहले से ही 40 थी और 40 अटेंड कर रहे हैं. सो क्या हो जाएगा, 1:1 is the ratio. This is the answer of this question. Okay, so come to the next question. Okay, in this question says that in a sports academy 300 people. Okay, out of 300 people, 105 play only cricket, 70 play only hockey, and 50 play only football. Okay, 25 play both cricket and hockey, 50 play hockey and football, 30 play both cricket and football. The rest of them play all the three sports. So what is the percentage of what, at least two sports? Okay, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स कितने होंगे. सो हम लोग एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स के लिए, वन सेकेंड, एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स टोटल माइनस हम जो भी एट वन, एक जो प्ले क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो हॉकी खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो प्लेयर आ जाएंगे जो बोथ, जो 15, जैसे 15 प्ले बोथ क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल, 30 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड 25 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ये हमारे पास आ जाएंगे. ओके, सो 105 प्ले क्रिकेट. ओके, 70 प्ले हॉकी, सो +70
play hockey and plus 50 play football. So 50 play football. तो टोटल हमारे पास कितना था 300 माइनस 105 माइनस 70 माइनस 50. आप जब इसे माइनस करोगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 75. ओके. सो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स कौन हमारे एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मीन्स 2 और 2 से ज़्यादा. ओके. एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मीन्स क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा. तो 2 से हम लोग के पास इक्वल टू 2 है और 2 से ज़्यादा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं. द रेस्ट ऑफ देम प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स. सो 300 माइनस जब हम लोगों ने फर्स्ट स्पोर्ट का किया तो हमारे पास 75 आ गए जो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स को खेलते हैं. सो परसेंटेज क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 75 डिवाइड बाई टोटल 300 इंटू 100%. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 25% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन says that fiscal deficit was 4% of the GDP in 2015 and the increase to 5% in 2016. If the GDP increased by 10% from the 2015 to 16, the percentage increase in the actual fiscal deficit. Okay. So let's पहले हम लोग क्या करते हैं let GDP in 2015 is X. Okay. So GDP इन 2016 क्या आ जाएगा हमारे पास 10% से इंक्रीज हो रहा है. सो हम इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू एक्स. ओके. एंड हमारा क्या बोल रहा है फिजिकल डिफिसिट इन 2015 क्या है फिजिकल डिफिसिट इन 2015 कितना है 4%. सो 0.04 इंटू एक्स. एंड फिजिकल डिफिसिट इन 2016 कितना आ जाएगा हमारे पास ये 5% इन 2016 है. सो 5% है. सो 5% ऑफ 5% of the GDP into 1.1 into x. ओके. 1.1 into x. तो ये कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 0.055x. ओके. सो परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्चुअल फिजिकल डिफिसिट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन एक्चुअल फिजिकल डिफिसिट. ओके. क्या आ जाएगा हमारे पास फिजिकल डिफिसिट इन 2016 माइनस फिजिकल डिफिसिट इन 2015 डिवाइड बाई फिजिकल डिफिसिट इन 2015. ओके. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100. सो हमारा कितना आ रहा है 0.055x माइनस 15 में कितना था 0.04x डिवाइड बाई 0.04x इंटू 100. सो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 37.5%. ओके. सो 37.5%. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a country 1400 million populations are there, 70% on mobile phones. Among the mobile phones owners only 294 million access the internet. Okay. 294 ही एक्सेस कर पा रहा है इंटरनेट को. Among the internet user only half buy good from e-commerce portals. Okay, half ये आप याद रखना. ठीक है half. तो what is the percentage of the buyer in the country? तो buyer वही होगा जो बाई कर रहा है कुछ चीज़ को यहाँ पे among the phone just like. सो हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सो पहले लिख सकते हैं हम लोग टोटल पॉपुलेशन कितना है इन अ कंट्री 1400 मिलियन. ओके. एंड मोबाइल यूजर कितने हैं हमारे पास
मोबाइल यूजर्स 70% आर मोबाइल यूजर्स, तो 0.7 इंटू 1400 मिलियन, सो कितना आ जाएगा हमारे पास इसका 980 मिलियन। ओके, एंड इंटरनेट यूजर कितना हमारा कह रहा है 18 इंटरनेट यूजर्स 294 मिलियन। देखो 294 मिलियन, अमॉन्ग दिस इंटरनेट यूजर्स ओनली हाफ बाय ई कॉमर्स। ओके, सो टोटल हम लोग लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन who buy good from e-commerce. Okay, so e-commerce portal, so 294 क्या कह रहा है हाफ, so 294 डिवाइड बाई 2 147 मिलियन। सो लास्ट में क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बायर्स इन द कंट्री, तो बायर्स हमारे पास कितने आ गए हैं 147 मिलियन। ओके, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, परसेंटेज ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि यही हमारे यहाँ रहे हैं ई कॉमर्स बायर्स इन द कंट्री, क्या आ जाएगा हमारे पास 147 डिवाइड बाई टोटल हमारे पास कितने थे 1400 इंटू 100%, सो हमारा क्या आ जाएगा 10.5% ही जो बायर्स है वो 10.5% बायर्स इन द कंट्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.5%। ओके, सो मैं फिर से इसके बता रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन हमारी कितने गिवन है 1400 मिलियन। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने तोड़ा। मोबाइल फ़ोन यूजर्स, उसमें 70% मोबाइल फ़ोन्स यूजर्स हैं, सो 74% 0.7 इंटू इतना 980 मिलियन। इंटरनेट यूजर्स कितने थे 294 मिलियंस, उसमें से हाफ जो है वो ई कॉमर्स पोर्टल को internet only half buy goods on e-commerce portal. So what is the percentage of these buyers in the country? So only buyers in the country who buy goods from the e-commerce portal. So that's why I written that 147 millions and 147 divided by totals 1400 millions into 100% is equal to 10.5% is the answer of these questions. Okay, this is the compound interest problem. In this question given that the current population of the city is 11,02,500 and if it has been increased at the rate of 5% per annum, what was its population 2 years ago? Okay, so हमारा A given है 11,02 and 500, okay, and rate कितने given है हमारे पास 5%, R and T 2 years. So हमारे पास we know that वो लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ओके, सो हमारे पास अमाउंट गिवन है 11,02,500, P हमें नहीं पता है P हमें नहीं पता है एंड R हमें पता है कितना है 5%, सो 5 डिवाइड बाई 100 टू द पावर T, टाइम कितना है 2। ओके, सो 11,02,500 P इंटू 105 डिवाइड बाई 100, 105 डिवाइड बाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर। ओके, एंड जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11,02,500 P 21 स्क्वायर इज 441 और 20 स्क्वायर इज 400। ओके, सो हमारे पास P क्या आ जाएगा 11,02,500 इंटू 400 डिवाइड बाई 441, सो हमारा P आ जाएगा 10,000,000। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एंड सेकेंड मेथड इज दैट अगर ये कह रहा है कि 2 years ago द पॉपुलेशन वाज एक्स, मान लेते हैं लेट 2 years ago पॉपुलेशन वाज एक्स। सो हम लोग लिख सकते हैं ये 5% पर एनम से इंक्रीज कर रहा है, 5% पर एट द इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सो एक्स इंटू 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू कितने हैं हमारे करेंट पॉपुलेशन 11,02500। तो जब आप इसको इवालुएट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10,000,000, जो हम लोगों ने ये पूरे फॉर्मूला से बनाया और ये शॉर्टकट मेथड है, सेकेंड मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन से दैट एक पर्सन 1 है, पर्सन 2 है जो म्यूचुअल फंड ए बी एंड सी में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, the amount in mutual funds are given in the table. At the end of 1 year the total amount of the person 1 get 500 more than person 2. Okay, the annual rate of the return of the mutual fund B and C is 15% each. What is the annual return of the mutual fund A? So इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ पहले निकाल लेते हैं पर्सन 1 का, पर्सन 1। ओके, सो ए का क्या आ जाएगा 10,000, इसका अमाउंट, इसको जब यहाँ पे अमाउंट कर रहे हैं तो हम लोग 10,000 इंटू 1+r, इसको 1+r में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनल अमाउंट क्या होता है, देखो बी एंड सी में 15% ईच एनुअल रिटर्न दे रहा है, बट अब ए में नहीं दिया गया है कुछ, तो हम लोगों ने मारा पर जो 1+r से वो इंक्रीज कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, सो मैं बताता हूँ। 1 इज द ओरिजिनल मनी और r इज द एक्स्ट्रा रिटर्न, कितना उससे प्रॉफिट मिल रहा है। so just like if you give you the example, suppose 1,000 invested at 10% return। so हम लोग क्या लिखते हैं 10,000 इंटू 0.10 100, और जब हम लोग 1,000 प्लस 100 करेंगे तो 10% रिटर्न कितना आ जाएगा हमारे पास 1100। और इससे जब हम इसे इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, 1,000 इंटू 1 प्लस 0.10, सो 1,000 इंटू 1.10 इक्वल टू 1100। So that's why I written like that is a is the amount is the 10,000 in mutual fund A 1 plus R. Okay, so this is the example. Okay, this is not the solution, this is the example to understand how we can write 10,000 into 1 plus R. Okay, so और B में क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड क्या हो रहा है, B में पर्सन ए के लिए 15,000 है, 15,000 नो सॉरी 20,000 कितने पे एट 15%, एट 15% रिटर्न। ओके, 15% रिटर्न, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में 20,000 इंटू 1.15, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। ओके, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23,000। ओके, सिमिलरली सी कितना आ जाएगा हमारे पास, सी 20,000 एट 15% रिटर्न, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 23,000। सो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल देखो 1,000 1 प्लस r प्लस 23,000 इंटू 23,000, जो 2 इंटू 23,000 हम लोग लिख सकते हैं। अब पर्सन बी के लिए निकालते हैं। ओके, पर्सन 2 के लिए, सॉरी पर्सन 2 के लिए
तो %2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 20,000 इंटू 1 प्लस R इज द रिटर्न। B का क्या हो जाएगा सिमिलरली 15,000 एट 15 कितना दिया हुआ है 15%। ओके, सो 15%, तो इसका क्या आ जाएगा 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 को, तो 17250। और C का कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000 एट 15%, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 17,250। ओके, सो पर्सन, इसमें अब एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, person 1 गेट्स 500 मोर देन person 2। तो इसका टोटल आप इसका टोटल मैं लिख देता हूँ। इसका टोटल क्या आ जाएगा 2000 1 प्लस R प्लस 2 इंटू 17,250। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन गेट 1000 इंटू 1 प्लस R प्लस 2 इंटू 23,000 इक्वल टू 20,000 इंटू 1 प्लस R प्लस 2 इंटू 17,250 प्लस कितना कह रहा है 500। ओके, सो 500। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से R की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.10। सो हम इसे लिख सकते हैं 10%। पूछा है ना व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द म्यूचुअल फंड अमाउंट ऑफ A। तो इस कंडीशन से हम लोगों ने ये बनाया जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 500 एज कम्पेयर टू person 2। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें R इक्वल टू 0.10 मिला। और 0.10 को हम परसेंटेज में कितने लिख सकते हैं, इंटू 100% करेंगे तो 10%। So this is the answer of this question. So option B is the correct answer of this question. Guys, if this video is helpful for you, so please like and subscribe this channel. Thank you so much guys for watching this video. Have a good day.